Good morning, dear students. Today I will be discussing computation of first and follow sets in the top-down parser. We have taken the example in the my previous video how to transform a grammar into a form that is fit for predictive parser, that is the grammar which is also called LL1 grammar. So this is the grammar that we have modified from this grammar. Okay, so this grammar we will be taking to compute and the first and follow set. Now here one thing is to be noted: why to compute first and follow sets? Basically we are going to construct the parsing table for predictive parser, which will be used for parsing. The parsing table requires computation of first and follow, and there is one more reason also. The first and follow are the set of terminal symbols for terminals on or non-terminals that will help us in deciding the look ahead. Look ahead is very important in predictive parser. LL1, if you remember, 1 stands for look ahead of one symbol. So these first and follow sets will help us in deciding the look ahead and will be used in construction of parsing table. So let us start. I have already done some exercise, so I will be explaining you one by one. So first and follow algorithms are there with me. So you see, first set is computed like this. So if x is a terminal symbol, then first of x is x itself. So all terminal symbols, first is the terminal symbol itself. And if there is a production x producing epsilon, then epsilon is part of first of x, right? And third rule is, if x is a non-terminal and x has a production like this, x is producing y1, y2 up to yk, then in this case, this is called a composite case, and there are so many symbols. So first of x in this case will be computed like this. You first have to compute first of y1. So first of y1 and then include first of y1 to first of x. Then what will you do? This second step tells you, if you go through it, it tells you that first of x will include first of y1 only if the first of y2, only if first of y1 contains epsilon. Similarly, first of x will contain first of y2 also only if first of y1 and first of y2 both have epsilon. So easy thing here is, you compute first of y1 and see if there is no epsilon in first of y1, no need to compute other symbols and union it for first of x. Okay, and finally what will you will be doing, if epsilon is part of all first of y1, y2 up to yk, then epsilon will be simply added to first of x, right? Let us start. How will this rule be applied? We will apply each rule to each production of the grammar. Each rule to each production. Let us start. The first production is E producing T E dash, right? So first of E we are going to compute here, because E is a non-terminal. E is a non-terminal. So we will be applying this third rule, because only third rule is for non-terminal. So how will the third rule be applied? First of E will be first of T union first of E dash, right? And first of T, we don't know first of T right now, up to now. So we will have to leave it as it is for the later on, unless we know first of T. So next production is E dash producing plus T E dash and E dash producing epsilon. See, so first of E dash can be computed from here. The first of E dash is equals to first of plus union plus first of T union first of E dash. If you remember the rule, this rule 3, these 3 steps. So I am explaining you. First of E dash equal to first of plus. First of plus means only plus. So plus will be part of first of E dash. Now since first of plus does not contain epsilon, so there is no need to compute first of T and first of E dash, and no need to add it. So by this production, first of E dash is plus only, and by this production, first of E dash is epsilon, because if x producing epsilon, then epsilon is also part of first of x, right? So by this rule, epsilon is part of first of E dash. So first of E dash we have already computed. Then take this second next production. This production will suggest you the same thing. How? First of
t can be computed from here. So first of t is equals to first of t is equal to first of f union first of t dash, just like here. If you know first of f, then only compute you can compute first of t. The first of f is not known yet. This I have put since I have computed so many. So you will see till now we don't know first of f. So let us go ahead. Next production, t dash producing star f t dash over epsilon. Next production. So by this production you can compute first of t dash. First of t dash is first of star is a star. Star is a terminal. So terminals first is terminal itself, and first of f and first of t dash need not be added to this because first of star does not contain epsilon. But epsilon will be part because of this production. T dash producing epsilon, so epsilon will be part of first of t dash. So two symbols have been added to first of t dash, right? Let us move ahead to next production. That is the last production, which again has two parts, f producing in bracket e and f producing id. Take this production. So by this production, first of f can be computed. So first of f is equal to first of left bracket first of plus union first of e union first of right bracket. But first of left bracket is a terminal symbol. So first of left bracket is left bracket itself. No epsilon, so no need to compute this first of this and first of this. So first of f is left bracket only, and then by this production, this is a id, yani ki this is a terminal. So first of f will also include id. So these two terminal symbols have been added. That's why I have put it over here. So by this we can compute first of t. First of t will be left bracket and id only. No union will be required because no epsilon is there here, right? So by this we have computed first of t also, and since we have computed first of t, we can compute first of e also. First of e will be first of t union first of e dash. So first of t is left bracket and id, right? So left bracket and id is first of e also. No need to compute first of e dash because first of t doesn't contain any epsilon. So let us move ahead to follow now, if you have understood. So this is the follow example, rule. What is follow? Defined as a set of terminals that can immediately follow x. If x, that means x is a non-terminal, and if we have this type of production of x followed by t is a terminal. So follow x will be t, right? Follow we compute follow for non-terminals only, and first for terminals and non-terminals both. So let us know the rule. You see, first rule simply suggests that dollar is always the part of follow of non-terminal s, that is start symbol, dollar. First rule will be applied only to once. Now second and third rule will be applied to all productions. Remember, second rule simply says that you have to search a production like this: A producing alpha, B beta. Alpha, beta are grammar symbols, B is a non-terminal. Okay. Then everything in first of beta except epsilon is in follow of B. So if you know first of beta, then you can easily compute follow of B. And third rule has two parts. Either you search a production of this form or a production of this form. Okay. So whatever is the production that matches with the grammar production. If this is the production, then beta must be containing epsilon, or beta must produce epsilon. This must be remembered. And if this is the production, then since beta is not appearing over here, no issue. So then what will be the outcome? Follow of A is in follow of B, and if follow of A will be in follow of B. So if know the follow of A, follow of B easily can be computed. Let us now move ahead to compute practically. You see, we have a set of examples. Lots of examples are there with us. We will be applying this production and compute follow. So we will be starting computing follow set one by one. We will be applying rule 1 first.
rule 1 first. So rule 1 will give you what? You see, rule 1 says that dollar is in follow of S. So simply this rule, as I told you, will be applied only once. So dollar is in follow of E. In our case, you know, this is E is the non-terminal and E is the starting symbol also. So dollar will be in follow of E, right? So now next we have E producing TE dash. Okay, so E producing TE dash. Let us apply rule 2 here of follow. Just write rule 2 here. A अल्फ़ा बी बीटा, ये आपको आसान कर देगा मैच कराने के लिए. तो अल्फ़ा बी बीटा, अब आप देखो इसमें एवरीथिंग इन फर्स्ट ऑफ बीटा इज इन फॉलो ऑफ बी. तो एवरीथिंग इन फर्स्ट ऑफ बीटा की जगह ई डैश है, तो फर्स्ट ऑफ ई डैश इज इन फॉलो ऑफ टी. तो फर्स्ट ऑफ ई डैश अगर हम निकाल चुके हैं एक्सेप्ट एप्सिलॉन, फर्स्ट ऑफ ई डैश हम निकाल चुके हैं और फर्स्ट ऑफ ई डैश हमने निकाला हुआ है प्लस, राइट. आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ई डैश में यहाँ पे हमारा प्लस आया हुआ है, तो एप्सिलॉन लिया नहीं जाएगा, तो ये फॉलो ऑफ टी में भी आ गया. ठीक, अगला लेते हैं ई डैश प्रोड्यूसिंग प्लस टी ई डैश ओवर एप्सिलॉन. तो इसको हम अप्लाई करेंगे इस पर. अब इस पर भी रूल 2 पे चल रहे हैं, अभी हम सारे प्रोडक्शंस पे अप्लाई करना है. तो ए प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा बी बीटा, ये हमने रूल के ऊपर ग्रामर के ऊपर लिख लिया. तो अब हमारा क्या आ गया, एवरीथिंग इन फर्स्ट ऑफ ई डैश इज इन फॉलो ऑफ टी, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ई डैश भी हम निकाल चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ई डैश हमारा आ चुका है प्लस और ई, पहले ही भी हम कर चुके हैं. तो ये फॉलो ऑफ हमारा टी में. अब इससे आप देखो कि सेम चीज़ आ रही है, कुछ नया नहीं आ रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं, रिपीट हो रहा है. अगला देखते हैं टी प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश. नेक्स्ट प्रोडक्शन हमारा ए अल्फ़ा यहाँ पे आ गया, अल्फ़ा ग्रामर सिंबल है, बी बीटा, राइट. रूल 2 अप्लाई किया है, देखो रूल 2 यहाँ भी अप्लाई हो रहा है क्योंकि अल्फ़ा ग्रामर सिंबल है तो अल्फ़ा कैन बी एप्सिलॉन आल्सो. बी एक नॉन टर्मिनल है, एफ बी नॉन टर्मिनल है, तो मैच होना चाहिए. और बीटा ग्रामर सिंबल है तो बीटा टी डैश हो सकता है, अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल और एप्सिलॉन. तो इस रूल से क्या आ रहा है, एवरीथिंग इन फर्स्ट ऑफ बीटा यानी कि फर्स्ट ऑफ टी डैश इज इन फॉलो ऑफ बी है, फॉलो ऑफ एफ. तो फर्स्ट ऑफ टी डैश हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. आप देखो स्टार है, एप्सिलॉन तो लिया नहीं जाता है फॉलो में, तो स्टार आ गया फॉलो ऑफ में. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. ऐसे ही आगे देखिए, नेक्स्ट प्रोडक्शन हमारा है टी डैश प्रोड्यूसिंग स्टार एफ टी डैश ओवर एप्सिलॉन. अब इस वाले पार्ट को हम देखते हैं. तो सेकेंड रूल अप्लाई कर रहे हैं. सेकेंड रूल क्या कह रहा था कि ए प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा बी बीटा, अल्फ़ा की जगह ये है, बी ये है, बीटा ये है. तो अब क्या रूल कह रहा है, एवरीथिंग इन फर्स्ट ऑफ टी डैश, फर्स्ट ऑफ बीटा इज इन फॉलो ऑफ एफ, राइट. तो फॉलो ऑफ एफ में क्या आ गया, फर्स्ट ऑफ टी डैश हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसमें प्लस था इफ़ यू रिमेंबर. तो फर्स्ट ऑफ टी डैश अगर आप देखो, फर्स्ट ऑफ टी डैश में हमने प्लस निकाला हुआ था, तो फर्स्ट ऑफ टी डैश में तो फॉलो ऑफ एफ में हमारा क्या आ गया, प्लस आ गया, स्टार सॉरी, फॉलो ऑफ एफ. तो यहाँ पे हमारा आ गया स्टार. फर्स्ट ऑफ टी डैश में हमने स्टार निकाला हुआ था, फर्स्ट ऑफ टी डैश ये स्टार, राइट. तो फॉलो ऑफ एफ में हमारे पास स्टार आ गया इस रूल से. अगला हम प्रोडक्शन देखते हैं, जो लास्ट प्रोडक्शन है, रूल 2 अप्लाई करते हैं. एफ प्रोड्यूसिंग ब्रैकेट ई क्लोजिंग ब्रैकेट, ए अल्फ़ा बी बीटा, बीटा की जगह है क्लोजिंग ब्रैकेट. तो फर्स्ट एवरीथिंग इन फर्स्ट ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट इज इन फॉलो ऑफ बी, दैट इज फॉलो ऑफ ई. तो क्लोजिंग ब्रैकेट का फर्स्ट कैसे निकलेगा, क्योंकि ये टर्मिनल सिंबल है तो इसका फर्स्ट होगा क्लोजिंग ब्रैकेट इटसेल्फ. तो फॉलो ऑफ ई में क्या आ गया, क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट. तो फॉलो ऑफ ई में क्लोजिंग ब्रैकेट, एक सिंबल और ऐड हो गया, राइट. अब उस पर बाद अब हम सारे प्रोडक्शंस पे रूल 2 अप्लाई कर चुके हैं. अब रूल 3 की बात करते हैं. रूल 3 सारे प्रोडक्शंस पे अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट प्रोडक्शन इज ई प्रोड्यूसिंग टी ई डैश, राइट. तो रूल 3 क्या कह रहा है, रूल 3 के 2 पार्ट्स हैं. तो यू सी फर्स्ट पार्ट ए प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा बी और सेकंड पार्ट है ए प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा बी बीटा. बीटा के साथ कंडीशन है कि ये एप्सिलॉन में का प्रोडक्शन होना चाहिए. तो हम ये वाला पार्ट मैच कर रहा है, ये वाला पार्ट लगाते हैं, हालांकि बी वाला पार्ट भी लग सकता है इस पर. तो ई प्रोड्यूसिंग
टी ई डैश। अब आप देखो ये रूल क्या कह रहा है, दिस रूल सेज एवरीथिंग इन फॉलो ऑफ ए इज इन फॉलो ऑफ बी, एवरीथिंग इन फॉलो ऑफ ई इज इन फॉलो ऑफ ई डैश, राइट। तो जो फॉलो ऑफ ई में है वो फॉलो ऑफ ई डैश में भी है, ठीक है। तो इस रूल के हिसाब से फॉलो ऑफ ई अगर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो वो फॉलो ऑफ ई डैश में भी आ जाएगा। ये आपको देखना होगा कि फॉलो ऑफ ई हम कहीं निकाल चुके हैं। फॉलो ऑफ ई देखो आप यहाँ पे डॉलर निकाल चुके हो आप, राइट। और भी कहीं फॉलो ऑफ ई अगर निकाला है आपने तो डॉलर आ जाएगा फॉलो ऑफ ई डैश में, राइट। तो और फॉलो ऑफ ई यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट भी निकाल चुके हैं। तो ये सारे आपके इस रूल से क्या आगे फॉलो ऑफ ई डैश में। सिमिलरली ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे हम। अगला प्रोडक्शन लिया ई डैश प्रोड्यूसिंग प्लस टी ई डैश, थर्ड रूल अप्लाई करते हैं। ये सेकंड पार्ट थर्ड रूल का क्या कह रहा है, ए अल्फा बी बीटा लगा दिया तो क्या रहा है एवरीथिंग इन फॉलो ऑफ ई डैश इज इन फॉलो ऑफ टी। फॉलो ऑफ ई डैश जो निकाला है वो फॉलो ऑफ टी में भी चला जाएगा। तो फॉलो ऑफ ई डैश में भी हमने क्या क्या निकाल लिया हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए सेपरेटली इसको लिख लिया जाता है। फॉलो ऑफ ई डैश और फॉलो ऑफ जो ई डैश में है एवरीथिंग इन फॉलो ऑफ ई डैश। तो फॉलो ऑफ ई डैश में जो भी हमने निकाला है अभी वो फॉलो ऑफ टी में भी चला जाएगा। ये रूल 2 से निकाला था, फॉलो ऑफ ई डैश इज इन फॉलो ऑफ टी। ये देखो फॉलो ऑफ ई डैश इज इन फॉलो ऑफ टी यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ निकाला है फॉलो ऑफ ई डैश इज इन फॉलो ऑफ टी। तो जो भी फॉलो ऑफ ई डैश में है वो फॉलो ऑफ टी में इस रूल से चला जाएगा। अगर आपने कंप्यूट किया है वो सब इसमें फॉलो ऑफ टी में आ जाएगा, राइट। अगला रूल देखो, अगला प्रोडक्शन देखो आप, टी प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश, टी प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश। तो टी प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश से क्या आएगा, थर्ड रूल का फर्स्ट पार्ट लग रहा है ए अल्फा बीटा अल्फा बी। तो एवरीथिंग इन फॉलो ऑफ ए यानी कि फॉलो ऑफ टी इज इन फॉलो ऑफ टी डैश। तो जो भी फॉलो ऑफ टी में है वो फॉलो ऑफ टी डैश में भी आ जाएगा हमारा। तो फॉलो ऑफ टी डैश अगर हम निकाल चुके हैं तो वो फॉलो ऑफ टी निकाल चुके हैं तो फॉलो ऑफ टी डैश में भी आ जाएगा। तो ये यहाँ से हमने निकाला है फॉलो ऑफ ई डैश इज इन फॉलो ऑफ टी। तो ये फॉलो ऑफ टी में हमने देखो प्लस निकाला था ऑलरेडी, तो ये फॉलो ऑफ किस में आ जाएगा, टी डैश में भी आ जाएगा। सिमिलरली अगला प्रोडक्शन देखते हैं, टी डैश स्टार एफ टी डैश। इस रूल से क्या कह रहा है, थर्ड रूल से अल्फ़ा बीटा मैच कर रहा है, बीटा बी नॉन टर्मिनल है एफ नॉन टर्मिनल है, अल्फ़ा की जगह ये है बीटा की जगह ये है। और टी डैश बीटा ये थर्ड रूल का सेकंड पार्ट लगेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बीटा है बीटा मस्ट कंटेन एप्सिलॉन, यानी कि बीटा एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि टी डैश एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है। आप देखो प्रोड्यूस कर रहा है टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, राइट। तो ये लग सकता है रूल। तो अब आप देखो इस रूल से क्या है कि एवरीथिंग इन फॉलो ऑफ टी इज इन फॉलो ऑफ एफ। तो जो भी कुछ फॉलो ऑफ टी में है वो फॉलो ऑफ एफ में भी होगा। फॉलो ऑफ टी में अभी हमने निकाल रखा है, ये यहाँ से फॉलो ऑफ टी में हमने सिंबल्स निकाल रखे हैं, तो ये सारे फॉलो ऑफ एफ में भी आ जाएंगे। तो फॉलो ऑफ टी में हमने जो निकाल रखे थे अभी तक अलग अलग रूल से, वो फॉलो ऑफ टी में जो निकाले थे हमने, जैसे प्लस राइट पैरेंथेसिस डॉलर, तो ये फॉलो ऑफ एफ में भी आ जाएगा, प्लस राइट पैरेंथेसिस डॉलर। और फॉलो ऑफ एफ में पहले हम स्टार भी कंप्यूट कर चुके हैं, तो स्टार भी आ गया, क्योंकि स्टार फॉलो ऑफ एफ में हम यहाँ पे कंप्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी, आप देखो। और बाकी सारे हमने प्रोडक्शन अप्लाई कर लिए। एक प्रोडक्शन हमारी और है, एफ प्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस ई। अब इस पर भी हमको थर्ड रूल अप्लाई करना है, हमको देखना है अप्लाई हो सकता है कि नहीं। अब आप देखो ट्राई करो, थर्ड रूल का फर्स्ट पार्ट तो अप्लाई होगा नहीं। फर्स्ट पार्ट ये ए प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा बी, और थर्ड रूल का सेकेंड पार्ट है ए प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा बी बीटा। दोनों में से कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा है। अल्फ़ा भी अप्लाई नहीं होगा, इसको अल्फ़ा करोगे इसको बी करोगे तो दिस सिंबल विल बी लेफ्ट ओवर। या फिर आप सेकंड पार्ट करोगे अल्फ़ा बी बीटा, तो कंडीशन ये है कि बीटा मस्ट प्रोड्यूस एप्सिलॉन, यानी कि राइट पैरेंथेसिस का एक प्रोडक्शन होना चाहिए जो एप्सिलॉन हो, क्योंकि ये तो टर्मिनल है, इसका प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए थर्ड रूल का ना तो ये पार्ट लगेगा ना ये पार्ट लगेगा, तो इस पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। और थर्ड रूल जो है एफ प्रोड्यूसिंग आईडी पे भी नहीं लग पाएगा कोई किसी भी वजह से, क्योंकि आप देख सकते हो प्रोडक्शन ऐसा है, इसलिए थर्ड रूल नहीं लगेगा। दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो।
कैसे पता चला कंप्लीट हो गया है? ऐसे कि फर्स्ट और फॉलो के सारे रूल सारे प्रोडक्शन में हमने ट्राई कर लिए। ट्राई करने के बाद मैंने एक कंपोजिट शीट बना रखी है बेस्ड ऑन दिस। यू सी दिस इज़ द कंपोजिट शीट। ऐसे आपको एक बना के रख लेनी है, क्योंकि अब पार्सिंग टेबल बनाने में इसका काम आएगा। ई फर्स्ट एंड फॉलो ये सारे नॉन टर्मिनल्स हैं, और सारे नॉन टर्मिनल्स के फर्स्ट और फॉलो हमारे पास आ गए हैं। फर्स्ट ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्मिनल्स के लिए भी निकल सकता है। तो फर्स्ट का टर्मिनल के लिए निकालना है, फर्स्ट ऑफ ए टर्मिनल इज टर्मिनल इटसेल्फ, जबकि फॉलो नॉन टर्मिनल्स के लिए हमको निकालना होता है। इतना होने के बाद अब हम अगले स्टेप में पार्सिंग टेबल बनाएंगे, दैट यू कैन सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। थैंक यू।